Hello everyone, welcome to our Nifty Bank Nifty live analysis. So after yesterday's expiry, which was more or less range bound, we'll try to understand what is the direction of Nifty from here on. So today market opening gap up, and after the global markets doing good, we need to understand how will market going ahead will poise for. So when we saw a big fall happening over here, yesterday market did open gap up and went sideways. So first thing over here is a complete sideways structure, which basically tells me a lot of support is there with the high, which was made yesterday, and even prior zone, which was there where the high was made. So mainly we can say whenever the resistance has been broken, so whenever there is a resistance which has been broken on the upside, okay, they will act like support. So first thing is, which was resistance, will act like support. So 17,850 to 600, 17,850 or so will act like good support. And then you have the second support, which is also a smaller support in this area. So this is the support for Nifty on the downside, so 1 and 2. And then you have the last support, which is obviously the lows or the gap zone, which we had told prior as well. Now the idea here is, when you know bigger support is around 17,600, the other one is around 700 or so, 750, and then 850 or so. Let's see from option data, okay, what are the downside support and is there any big resistance on the upside or not. So ये तो हो गया 1 hour structure, and we can clearly see over here there is lot of selling pressure on Nifty at lifetime high. और आज भी अगर आप देखोगे तो निफ्टी ऊपर गया और वहीं से सेलिंग आ गई. So 17,950 or so, or maybe towards, you can say 950 to 18,000 zone. I feel that resistance is very, very high. Now, this is technical insight. What we have done over here is understand technically कौन से important level है support के लिए और कौन से important level है resistance के लिए. अब देखते हैं options data हमें क्या बोलता है. तो सबसे पहले ये है कि options data plot करके ये देखते हैं कि option data में resistance और support किधर आ रहा है. So we'll go to 15-minute chart and we'll try to see your strong support. Green dotted line आया, इसका मतलब strong support है through options data, and यहाँ से select भी कर सकते हैं कि option data हमें क्या बता रहा है. More or less market अभी 17,900 चल रहा है. तो option data for 14th October, just plot again. Yeah. 14th अक्टूबर के लिए अगर आप ऑप्शन का डेटा देखते हो तो 18,000 पे almost 33,000 people are standing. So 18,000 will be a strong resistance, right? And second, 17,900 पे भी almost 26,000 are standing. मतलब 18,000 to 17,900 and 1750 more or less very high resistance is there. So market 900 के ऊपर अगर टिकेगा भी तो भी 18,000 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है. दूसरी बात, 17,900 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, तो इसका मतलब 17,900 विल बी अ मेक और ब्रेक लेवल. सो इट हैज टू आइदर सस्टेन 17,900 के अगर ऊपर रहता है मार्केट और सस्टेन करता है तो और ऊपर जा सकता है, और अगर 17,900 के नीचे रहता है तो मार्केट डाउन साइड जाएगा. जिसका मतलब ये क्लियर हो गया, अगर आपको निफ्टी में ट्रेड लेना है इवन आफ्टरनून में या कल, फोकस ये रखना पड़ेगा 17,900 और 18,000, क्योंकि 18,000 पे भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है. 17,900 और 18,000 इंपॉर्टेंट है. उसके साथ साथ डाउन साइड अगर देखें सपोर्ट कहाँ पे, सपोर्ट अगर डाउन साइड देखता हूँ तो 17,800 और 17,700 पे है. तो हमने जो प्लॉट किया है मोर और लेस इट इज ऑप्शन डेटा भी हमें वही बोल रहा है. तो एक ऑप्शंस की लाइन भी यहाँ पे बना लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहाँ पे है. So, पहले तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है अराउंड 700 के रेंज में है, जो 600 इधर है और 17,700 इज मोर लेस ओवर हियर. तो यहाँ पे अच्छा सपोर्ट है निफ्टी को आने वाले टाइम के लिए. सो इसे बनाए रखते हैं और आगे के दिनों में इस पे देखेंगे कि वेदर मार्केट कम्स हियर सपोर्ट देता है कि नहीं देता. और दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट 17,600 पे. तो ये तो हो गया डाउन साइड सपोर्ट निफ्टी के लिए. अब आ जाते हैं रेजिस्टेंस पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जो एक चीज समझ में आ गई है कि 18,000 नो डाउट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है फ्रॉम ऑप्शन पॉइंट ऑफ व्यू, प्लस
17,900 is make or break level, which is very very important to understand. तो इसका मतलब निफ्टी में हायर रेजिस्टेंस जोन जो है ऑप्शंस के डेटा के थ्रू 17,900 और 18,000 का जोन है। अगर मैं ऑप्शन डेटा पुल आउट करता हूं तो वहां पे भी अगर आप देखो तो मैक्स कॉल जो है वो भी 18,000 पे ही आ रहा है। तो इसका मतलब 18,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है फ्रॉम ऑप्शन पॉइंट ऑफ व्यू। और 17,900 आज हमने ये देखा है कि 17,900 पे हाईएस्ट कॉल और पुट दोनों खड़े। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे जब तक ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता तो उसके ऊपर नया हाई बनाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ ऊपर सस्टेन भी कर जाएगा तो 18,000 निकालना पड़ेगा। तो अनलेस देयर इज नो गैप अप्स, वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस एंड मेक न्यू लाइफ टाइम हाई। सेकेंड, अगर 17,900 नहीं जाता है, इसके ऊपर नहीं सस्टेन करता है तो डाउन साइड आ सकता है। तो सबसे पहले डाउन साइड जो मार्केट का है 17,750 तक आ सकता है, और उसके बाद जाके वो 700 से 600 का जो जोन है वहां पे भी आ सकता है। तो आने वाले एक्सपायरी में नेक्स्ट वीक की डाउन साइड इज लिटिल बिट ओपन, डाउन साइड आ सकता है, बट उसके साथ साथ अगर ऊपर जाना है तो उसको 17,900 एटलीस्ट सस्टेन करना होगा। तो 17,900 के ऊपर अगर गैप अप भी खुलता है और वापस सेलिंग आती है और 900 के ऊपर से रिवर्सल लेता है तो ही वो ऊपर जा सकता है। सो ये हो गए इंपॉर्टेंट जोन निफ्टी के लिए फॉर अपसाइड एंड फॉर डाउन साइड। सो अपसाइड में तभी खेलूंगा अगर ये 17,900 के ऊपर सस्टेन करेगा, इफ इट सस्टेन्स अबाउट 17,900 एंड इफ इट क्रॉसेस मोर 18,000 आई विल ऐड ऑन टू माय पोजीशन. So this will be the zone to understand whether Nifty has upside or not. Second, next week में TCS, Infosys, सारे IT कंपनीज के और एक दो बैंक के भी रिजल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब रिजल्ट सीजन भी चालू हो गया है। मोर और लेस रिजल्ट सीजन में जनरली मार्केट्स ऊपर की तरफ ही जाता है। सो पॉजिटिव रिजल्ट्स आने वाले हैं, इस वजह से मार्केट का ट्रेंड भी ऊपर रह सकता है, बट S&P 500 पे भी फोकस करना होगा। अगर यूएस का मार्केट जो S&P 500 है अगर गिरता नहीं है, साइडवेज होता है या थोड़ा भी ऊपर जाता है, तो निफ्टी के लिए काफी अच्छा पुश हो सकता है। आज आरबीआई मीटिंग थी तो जल्दी से बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी को आर्ली चार्ट पे देखते हैं। सो आर्ली चार्ट पे बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट वी कैन से साइडवेज जा रहा है। तो अगर आप बैंक निफ्टी को हायर टाइम फ्रेम्स के साथ भी देखोगे तो एक ट्राइंगल फॉर्मेशन जैसा बैंक निफ्टी में बन रहा है, मतलब मोर और लेस काफी टाइम से मार्केट रेंज बाउंड हो गया है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट एटलीस्ट बैंक निफ्टी का रेंज बाउंड फॉर्मेट में चल रहा है, और यहाँ पे इसका एक ट्रायंगल स्ट्रक्चर का बनने का मतलब सिंपल है कि आगे आने वाले टाइम में नेक्स्ट वीक या उसके बाद बहुत अच्छा बैंक निफ्टी में मूव आने वाला है, आइदर अपसाइड आइदर डाउन साइड। बट अगर बैंक के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे ऑब्वियसली द टेंडेंसी यही है कि अपसाइड मूवमेंट आ सकता है। सो टेक्निकली एक तो ट्रायंगल ब्रेकआउट हो गया, दूसरा ये है जो इम्पोर्टेंट जोन बैंक निफ्टी का है वो मोर और लेस अराउंड 38,000। ये हमने लास्ट वीक की एक्सपायरी के लिए भी बोला था, और आज भी आरबीआई की मीटिंग के बाद हाई मारता हुआ फिर से नीचे आ गया है। सो 38,000 जब तक नहीं निकलता है, हायर अपसाइड बैंक निफ्टी पे नहीं है। अब आ जाते हैं सपोर्ट की तरफ। सो सपोर्ट में भी अगर मैं टेक्निकल डेटा देखता हूँ, सो सपोर्ट मोर और लेस वही वापस गैप जो जोन है अराउंड 37,400 to 500 वाला जो जोन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर मार्केट नीचे भी आता है ऑन दी डाउन साइड तो वो मोर और लेस 500-700 तक आ सकता है और फिर बाउंस बैक आराम से कर सकता है। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो गया बैंक निफ्टी के लिए। तो अगर उसे ऊपर जाना है वो एक डाउन साइड देके शार्प रिवर्सल कर सकता है, और अगर 38,000 के ऊपर निकल गया तो बैंक निफ्टी विल बी मेकिंग लाइफ टाइम हाइज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई बनाता है तो बैंक निफ्टी निफ्टी को भी सपोर्ट देगा और काफी अच्छा मूव निफ्टी में भी आपको देखने मिलेगा, क्योंकि निफ्टी को हम देख रहे हैं कि अगर 17,900 के ऊपर सस्टेन कर जाता है और फिर 18,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो वन साइड ओपन है फॉर 19,000 टारगेट स्ट्रेट 1,000%, 1,000 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड. That kind of move can happen in next 2 days, next 2 weeks, 2 to 3 weeks, and specifically अगर वन वे टेंडम ऑफ बैंक निफ्टी भी चालू हो गया, 1000 पॉइंट निफ्टी को मूव करना बहुत सिंपल हो। तो फोकस करेंगे अगर निफ्टी ऊपर जाता है कि नहीं एवरी डेली मार्केट कमेंट्री में। और मेन इंपॉर्टेंट है ये हमने टेक्निकली समझ लिया है कि बैंक निफ्टी मोर और लेस इज मोर रेंज बाउंड बट ट्रेंड ऑफ निफ्टी इज अपवर्ड्स। और रेंज बाउंड के साथ साथ ऑप्शन डेटा भी देख लेते हैं कि ऑप्शन डेटा हमें क्या कह रहा है। सो बैंक निफ्टी आरबीआई के बाद ऊपर तो गया, उसके बाद तुरंत नीचे आ गया। यहाँ पे देखने मिल रहा है कि बहुत अच्छा सपोर्ट है फ्रॉम ऑप्शन डेटा। अगर ग्रीन डॉटेड लाइंस आते हैं इसका मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी को इस एरियाज में।
अब ऑप्शन डेटा प्लॉट करके थोड़ा समझते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट जोन ऑफ रेजिस्टेंस या सपोर्ट है जिसपे हमें फोकस करना चाहिए। सो 14 अक्टूबर स्ट्रेट अवे आप देखोगे 38,000 हाईएस्ट रेजिस्टेंस है। जो हमने टेक्निकली देखा वो हमें ऑप्शन का डेटा भी यही बोल रहा है कि 38,000 आपका सबसे हाईएस्ट जोन है जहाँ पे बहुत सारा रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का। सो बैंक निफ्टी में अपसाइड 38,000 के बाद ही आएगा, 38,000 के क्रॉस नहीं करता है तो अपसाइड नहीं आएगा। दूसरी बात इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह अगर आप देखो 55,000 के सामने ओके अच्छा खासा सपोर्ट कहीं भी नहीं, 37,700, 500, 300, सो 500 पे थोड़ा बहुत सपोर्ट है, उसके बाद कहीं पे भी सपोर्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि 500 के जोन में अगर मैं बैंक निफ्टी को लेके जाता हूँ और देखता हूँ कि अराउंड 400 टू 500 यही जोन है जहाँ पे अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी को फ्रॉम ऑप्शन पॉइंट ऑफ व्यू। सो ऑप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पॉइंट जो प्लॉट करते हैं अराउंड 37,500 का जोन है, यहाँ पे सपोर्ट है प्लस रेजिस्टेंस जो है वो मैंने टेक्निकल लाइन या आज का हाई प्रीवियस हाइज जो भी है वो मोर और लेस आपका 38,000 के जोन में। सो 38,000 38,100 ये जोन काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम ऑप्शन डेटा पॉइंट से भी। सो 38,000 पे नजर रखनी होगी। अगर आज का जो हाई है वो क्रॉस करता है, सस्टेन करता है आने वाले टाइम में तो ही बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। डाउन साइड आने के लिए काफी ज्यादा डाउन साइड है नहीं, पर अगर ग्लोबल मार्केट गिरते हैं तो आराम से गिर सकता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बैंक निफ्टी में नहीं दिख रहा। ऑप्शन डेटा भी नहीं सजेस्ट कर रहा है टेक्निकली 17,400 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं जाना चाहिए। सो लेट्स सी बुलिश फॉर नेक्स्ट वीक मोर और लेस बैंक निफ्टी एंड निफ्टी मोर अलोन और मोर सो दोनों के दोनों बुलिश फॉर्मेट में है, बट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट जोन्स हैं जो उन्हें क्रॉस करना होगा अपसाइड जाने के लिए या नया हाई बनाने के लिए। सो मोर और लेस बैंक निफ्टी में अगर देखें तो मुझे 38,000 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करती है तो ही शार्प अप मूव आ सकता है। और दूसरा अगर मैं निफ्टी में भी देखता हूँ तो निफ्टी में भी 17,900 और 18,000 जो हमने प्लॉट किया हुआ है टेक्निकल प्लस ऑप्शन लेवल्स, और आज का भी जो सेलिंग आया है वो वहीं से आया है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी को भी अपसाइड जाने के लिए। अब दूसरा प्रॉब्लम निफ्टी के साथ ये है अगर आप देखो तो कंटिन्यूसली वो अपसाइड तो जा रहा है तो एक फॉल आउट कभी भी आ सकता है, बट एज आई सेड अगर यूएस मार्केट पॉजिटिव मूड में रहेंगे, अगर पॉजिटिव रहेंगे तो निफ्टी अपसाइड आराम से निकाल सकता है। सो लेट्स सी ऑन मंडे अगेन सेम ऑप्शन डेटा प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, और निफ्टी 17,900 के ऊपर या 800 के 18,000 के ऊपर सस्टेन करता है कि। सो बाय साइड निफ्टी तभी बनता है अगर 17,900 के ऊपर सस्टेन करता है, 900 का मतलब है रफली टुवर्ड्स द रेंज 950 और सो, और इसके बाद अगर रैली आती है तो ही वो 18,000 के ऊपर क्रॉस जाके आप और पोजीशन ऐड कर सकते हैं। सेम बैंक निफ्टी में थोड़ा साइडवेज रहेगा, ट्रायंगल ब्रेकआउट है और बैंक निफ्टी को 38,000 मेक और ब्रेक लेवल है बैंक निफ्टी के, क्योंकि काफी टाइम वहीं से रिजेक्ट हुआ है, ऑप्शन डेटा भी उधर ही है। अब देखते हैं आगे जाके 38,000 निकाल पाता है कि नहीं। दैट्स इट फॉर टुडे, लेट्स कनेक्ट अगेन ऑन मंडे। हैप्पी वीकेंड।